Good morning, class 8th. I am Dipali Prasad from Vardhaman Convent School, and this is your social studies class. And today we will learn the remaining part of lesson 4, national integration. So let's see the heading promotional forces. And it means सहायक तत्व. तो अब हम राष्ट्रीय एकीकरण में क्या क्या इसके सहायक तत्व हैं यह पढ़ेंगे. The national leaders of our country have put in valuable efforts to maintain the unity and integrity. They incorporated certain ideas and principles in the constitution of a strong and united India. The principles essential for the integrity and unity are democracy, fundamental rights, directive principles of the state policy, uniform judiciary, secularism, national emblems and national festivals, etc. It means भारत की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास हमारे देश के राष्ट्र लीडर्स मीन्स नेशनल लीडर्स द्वारा किए गए. भारतीय संविधान में ऐसे आदर्शों और सिद्धांतों का समावेश किया गया जिनसे भारत की एकता शक्तिशाली होती गई. ये सिद्धांत भारत की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक हैं और इनमें से है कुछ जैसे कि लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, एकीकृत न्याय व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, समान राष्ट्र प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय पर्व. ओके. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट. भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए सरकार का गठन किया जाता है. These representatives have to work for the interest and development of the people who have elect them. It means ये प्रतिनिधि जनता की इच्छा अनुसार कार्य किए जाते हैं क्योंकि जनता ही इन्हें चुनावों में चुन कर आगे भेजती है. और इसमें फर्स्ट है बच्चों फंडामेंटल राइट्स. इट मीन्स समान मौलिक अधिकार. Indian Constitution has a provision of 6 fundamental rights. These rights, without any discrimination, are enjoyed by all Indians. These rights are essential for overall growth and welfare of citizens. मतलब भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है. ये मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त होते हैं. नागरिकों के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए अधिकारों मीन्स मूल अधिकारों का होना अति आवश्यक है. प्रोविजंस फॉर इक्वलिटी, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस एटसेट्रा आई हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स. नागरिकों को विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय आदि का होना आवश्यक है. Under these constitutional provisions, the interest of weaker sections of the society like the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes have been protected and safeguarded. Every community has the right to preserve its own language and religion. इन संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत समाज में कुछ कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को संरक्षण प्राप्त होता है. प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म एवं भाषा आदि की स्वतंत्रता प्राप्त होती है. मतलब हर प्रांत के लोग अपनी अपनी भाषा और धर्म में रह सकते हैं. The directive principles are the guidelines for the government to work for the benefit of the poor and the exploited. It means नीति निर्देशक सिद्धांत भी निर्धनों, शोषितों मतलब जिन पे अत्याचार होता है और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की पूर्ति के उपाय करने के लिए सरकार का मार्ग निर्देशन कर सकते हैं. तो ये था बच्चा आपका फंडामेंटल राइट्स. अब हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज. Fundamental duties have also been mentioned in the Constitution. It is the duty of all citizens of India to respect the principle and ideals of the Constitution, national flag and national anthem. Every citizen should be conscious and ready to serve the nation and uphold the integrity and unity of India and should work to create the feelings of brotherhood and should protect the public property.
The judiciary is to protect the interest of democracy and rights of citizens in India. There is uniform judicial system for the center states and union territories which implement equal laws for all. The concept of Indian judiciary is uniform pyramid. सो फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स समान मौलिक कर्तव्य। जैसे कि अभी हमने समान मौलिक अधिकार पढ़े, वैसे ही हम मौलिक कर्तव्य देख रहे हैं। तो देखो बच्चों, मौलिक कर्तव्यों का भी भारतीय संविधान में एक उल्लेख है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, सम्मान करे। सभी नागरिकों को भारत की एकता और अखंडता हेतु राष्ट्र की सेवा को सदैव तत्पर रहना चाहिए और भाई बंधुत्व की भावना का निर्माण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। भारत में लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका का है। भारत में संघ अथवा केंद्र और राज्य के कानूनों को लागू करने के लिए इकहरी न्याय व्यवस्था है। इट मीन्स जुडिशरी। देखो बच्चों, जुडिशरी क्या होती है? जैसे कि जज होते हैं ना, जैसे कि कोर्ट में न्याय करते हैं, वैसे जुडिशरी में ना बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलकर एक उचित निर्णय लेते हैं। ओके। तथा भारत की न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है और उसका गठन एक पिरामिड के रूप में होता है। नेक्स्ट, सेक्युलरिज्म। इट मीन्स पंथ निरपेक्ष। Our constitution has declared India is a secular state. Followers of different religions have their own religious freedom. The government does not discriminate against any religion. इसका मतलब हमारे संविधान ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया है कि प्रत्येक धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सरकार किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं कर सकती। नेक्स्ट, नेशनल सिंबल्स मीन्स राष्ट्रीय चिन्ह। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड द नेशनल सिंबल्स विच इंस्पायर आइडियल्स एंड डिवोशन टूवर्ड्स नेशनल फ्लैग, ट्रिकलर, नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एम्बलम अशोक एम्बलम एटसेट्रा। These are the symbols of our unity and identity and work as cementing force to maintain national integration. It means भारतीय संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को भी अपनाया गया है जो समस्त नागरिकों को आदर्श एवं निष्ठा तथा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्र चिन्ह अशोक चिन्ह आदि। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय भावना को बल देते हैं और एकता की स्थापना करते हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण में अति सहायक है। There are people of various communities, caste and languages in India who have their own customs and festivals. We also have 3 national festivals, Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti, which are celebrated in India. This makes the feeling of national unity more strong. मतलब भारत में विभिन्न संप्रदाय, जाति और भाषा के लोग रहते हैं जिनके अपने अपने रीति रिवाज और त्यौहार होते हैं, किंतु हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती है जिन्हें सभी भारतवासी उल्लासपूर्वक और उत्साह से मनाते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल होती है और एक होती है। और बच्चों, अभी आपने देखा ही कि किस तरह से 2 दिन पहले ही पूरे देश में 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। और हम यह दिन इतने खुशी से इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन मीन्स 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। जैसा कि हमने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा था कि एंड में क्या होता है कि जो भारत है वह पूरा अंग्रेज़ों के कब्जे में चला जाता है और कई वर्षों तक भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत चलती है। और कई संघर्षों के बाद, इतने महापुरुषों के प्रयासों के बाद भारत को अंग्रेज़ों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए हम 15 अगस्त को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और गणतंत्र दिवस मीन्स 26 जनवरी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि जो संविधान हम अभी पढ़ रहे हैं वे सभी
उस दिन लागू हुए थे, मीन्स 26 जनवरी को। नेक्स्ट, टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म मीन्स पर्यटन, मतलब भारत के संविधान के अनुसार हम भारत के किसी भी राज्य के कोने में आसानी से आ जा सकते हैं। Tourism right from the beginning has been the most important factor for national integration. Tourism helps in developing a sense of unity and offers opportunity to know our vast country. Tourism brings us closer. People know and understand the characteristics and problems of each other, and this builds common feelings and outlook among them. Tourism is also helpful in knowing the development in culture, economy, and industry, and also the new dimension of progress in the country. मतलब शुरू से ही पर्यटन मतलब घूमना फिरना राष्ट्रीय एकीकरण का प्रमुख सहायक तत्व रहा है। इतने विशाल देश को समझने और सभी में एकता का भाव जागृत करने में पर्यटन सहयोगी होता है। पर्यटन से हम एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे की विशेषताओं को और समस्याओं को समझते हैं, जिसके कारण समान भाव, विचार और दृष्टिकोण विकसित होता है। मतलब देखो बच्चों, यदि हम एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे फिरेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा कल्चर कैसा है और दूसरों का कल्चर कैसा है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, हम उसमें क्या सुधार ला सकते हैं, क्या डेवलप कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें। पर्यटन देश की संस्कृति को, आर्थिक और औद्योगिक विकास को तथा विकास के नए आयामों को समझने में सहायक होता है। इंडिया इज लाइक अ गार्लैंड ऑफ वेरियस फ्लावर्स। इट मीन्स हमारा देश फूलों की एक माला के समान है। मल्टी कलर्ड एंड मल्टी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स woven in a single thread are the part of this unique garland. मतलब इस माला में अनेक रंग और महक वाले फूल एक धागे में पिरोए गए हैं। This simply means that we are united and live together with mutual tolerance and love. The feeling of our nationality makes India a prosperous and powerful country. इसका सरल अर्थ यह है कि हम एक सूत्र में मतलब एक धागे में बंधकर इस राष्ट्र में मिलजुल कर आपसी टॉलरेंस एंड लव के साथ रहते हैं। हमारी राष्ट्रीयता की भावना इससे एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र का स्वरूप प्रदान करती है। तो बच्चों, ये तो थे राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को और अधिक मजबूत बनाते हैं। तो जैसे कि हर वस्तु के कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो वहीं उसके साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अब हम देखेंगे डिसरप्टिव फोर्सेस मीन्स राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व। You have learned earlier that national integration was never a problem in ancient India as the entire nation was bound with the fabric of unity. In fact, a planned move to promote dividing force in the country was initiated in the 19th century with the propaganda of race theory. मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राचीन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कोई समस्या थी ही नहीं। पूरा देश एकता के एक सूत्र में बंधा हुआ था। देश में अलगाव मीन्स अलग अलग करने की प्रवृत्ति को विकसित करने की दिशा में सोचा समझा पहला कदम 19वीं सदी में उस समय उठाया गया, जब यहाँ प्रजाति सिद्धांत मीन्स रेस थ्योरी प्रचारित किया जाने लगा। In this race theory, efforts were made to alienate people from each other. Today, such things are on the decline. Still, there are some disruptive forces that hinder national integration in India. Some people, for self-gain, promote feelings to religion, caste, language, or region. This creates a situation of conflict and tension in the society. Such a situation weakens the country's unity and integrity. मतलब रेस थ्योरी के आधार पर भारत में रहने वालों को अलग अलग करने के प्रयत्न किए गए। हालांकि अब इन बातों का प्रभाव कम होने लगा है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पहुंचने वाले कई तत्व विद्यमान हैं। हमारे समाज में व्यक्तिगत हित के लिए कुछ लोग इन्हें बढ़ावा भी देते हैं। कभी कभी लोग अपने धर्म, अपनी जाति, भाषा अथवा क्षेत्र के मामलों में अधिक भावुक हो जाते हैं और इस वजह से
राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। इससे समाज में तनाव अथवा संघर्ष की स्थिति बन जाती है। यह स्थिति देश की एकता को कमजोर कर अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकती है। द डिसरप्टिव फोर्सेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन आर। अब हम राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व किस प्रकार है यह देखेंगे। फर्स्ट इज कम्युनलिज्म मीन्स सांप्रदायिकता। द वर्ड कम्युनलिज्म हैज originated from community. Communalism means feelings of superiority of one community and its faith and that of inferiority for the other and to keep the interest of the community above national interest. It means सांप्रदायिकता शब्द संप्रदाय से बना है। सांप्रदायिकता का अर्थ है ऐसी भावनाएं व क्रियाकलाप जो अपने संप्रदाय और उसकी विशेषताओं को तो श्रेष्ठ समझे ही तथा दूसरे के संप्रदाय और विश्वासों को हीन न समझे, मतलब गलत नहीं समझे। Communalism has always been a major threat of the unity of our country. We have known how narrow communal feelings caused communal rights riots in 1947 and split India into two countries, India and Pakistan. सांप्रदायिकता हमारे देश की एकता के लिए मुख्य खतरा भी है। हम सभी जानते हैं कि संकीर्ण सांप्रदायिक विचारों के कारण 1947 में सांप्रदायिक दंगे हुए तथा भारत दो भागों में विभाजित हो गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। Lakhs of peoples were slain and rendered homeless. Even after so many years of independence, such communal tendencies still persist and riots occur at different places in India. This is all due to ignorance and selfish interest of different section and religious bigotry. लाखों लोग इन दंगों में मारे गए और बेघर भी हो गए। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी आज भी भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर सामाजिक तनाव सांप्रदायिक दंगों में भी परिवर्तन हो जाते हैं, मतलब परिवर्तन हो जाता है। यह सब स्वार्थ, अज्ञानता और धार्मिक कट्टरता के कारण होता है। There is no harm in having many religions, but when people think of the interest of one's religious community above the national interest, it certainly harms the unity and integrity of our country. We should consider national interest above all. अनेक रिलीजन्स होने से कोई हानि नहीं होती, लेकिन जब रिलीजियस कम्युनिटी अपने हितों को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखते हैं तो इससे देश की एकता एवं अखंडता को निश्चय ही हानि पहुंचती है। हमें राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे लिंग्विज्म। इट मीन्स भाषावाद। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। इट इज ऑब्वियस दैट वी लव आवर मदर टंग एंड डायलेक्ट। मीन्स भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। यह स्वाभाविक है कि हमें अपनी मातृभाषा और बोली से प्रेम है। वी यूज इट इन अवर डेली एक्टिविटीज। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन अंडरस्टैंड देयर मदर टंग ओनली। देयरफॉर regional language is recognized as the official language of the state concerned. It is in accordance to the democratic spirit. मतलब कई क्षेत्र के अधिकांश लोग केवल अपनी मातृभाषा को ही समझ पाते हैं, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र भाषा को संबंधित राज्य की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है और यह लोकतंत्र की भावना के अनुकूल भी है। It is easier to impact education through mother tongue. मीन्स मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना अधिक सरल एवं उपयोगी होता है। Use of a language for official purposes and for imparting education help its development too. Many a time social tension brews over the issues of different languages. किसी भाषा को सरकारी कार्यों और शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग करने से उस भाषा का भी विकास होता है और कई बार भिन्न मतलब अलग अलग भाषा पर देश में सामाजिक तनाव भी पैदा होता है। People of different regions fearful of insecurity put now turn the page number 38. Put the interest of their language above the national interest. They love their languages and have narrow views and hatred for other languages. Such a feeling weakens the
unity of a nation. We should have same respect for other language as we have for our mother tongue. मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी ही मातृभाषा से प्रेम करते हैं, लेकिन जो अदर स्टेट की जो लैंग्वेजेस होती है वो उससे नफरत करते हैं. तो इस तरह की जो हीन भावना रहती है, इससे समाज में प्रॉब्लम्स और तनाव मीन्स टेंशन उत्पन्न होती है. तो इस प्रकार की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करती है और हमें मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं के प्रति भी सम्मान का भाव रखना चाहिए. मतलब जो रिस्पेक्ट हम अपनी लैंग्वेज की करते हैं वही हमें सेम अदर लैंग्वेज की भी करनी चाहिए ताकि समाज में कठिनाइयाँ उत्पन्न ना हो. नेक्स्ट देखेंगे कास्टिज्म. कास्टिज्म मीन्स जातिवाद एंड दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन नेशनल इंटीग्रेशन. मतलब जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है. यह प्राचीन समय से लेकर अब तक मीन्स कलयुग तक चलती आ रही है. Our ancient Varna or caste system was based on the occupation of men. Casteism is a big obstacle in the path of national integration. Caste is a unit which binds the people of the same caste in marriage and food habits. The people of the same caste could not break away from the foundations of caste, and so they fell to play vital role in the society. Gradually, this system became hereditary and it was linked to birth instead of work. The system became more faulty. मतलब हमारे प्राचीन वर्ण व्यवस्था और जो कास्ट सिस्टम है वह पहले कर्म पर मतलब मनुष्य के ऑक्यूपेशन व्यवसाय पर आधारित थी. बट अब यह मेन किस पे आधारित है? कास्ट पे. जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है. जाति ऐसी इकाई है जिसके सदस्य आपस में ही शादी विवाह और खान पान के नियमों में बंधे रहते हैं. एक ही जाति के सदस्य जाति बंधनों को तोड़ नहीं पाते, अतः इस वजह से वे समाज में आगे नहीं बढ़ पाते. और कलयुग में यह व्यवस्था वंशानुगत मतलब वंश के आधार पर हो गई तथा जाति कर्म के स्थान पर जन्म से जोड़ दी गई. पहले जैसे कर्म के आधार पर होती थी, अब जन्म के आधार पर माना जाता है. इसमें बहुत से दोष आ गए. जाति प्रथा के प्रमुख दोष कुछ इस प्रकार हैं. मेजर डिफेक्ट्स ऑफ कास्टिज्म आर: फर्स्ट, कास्ट सिस्टम डिवाइड सोसाइटी इनटू हाई एंड लो क्लासेस. मीन्स जाति व्यवस्था समाज को उच्च व निम्न वर्ग में बांट देती है. अपर कास्ट एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट. मतलब उच्च जाति के लोग छोटी जातियों का शोषण करते हैं. नेक्स्ट, कास्ट डिफरेंस बिकम मोर रिगिड. इट मीन्स जातिगत भेदभाव कठोर हो जाते हैं. प्रेशर्स ऑफ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स. इट मीन्स जातियों का दबाव राजनीति को प्रभावित करता है. कास्ट सिस्टम क्रिएट्स ट्रबल इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड यूनिटी ऑफ द नेशन. मतलब जाति प्रथा से देश की एकता और आर्थिक प्रगति में बाधा आती है. Social reformers voiced concern against racial discrimination and they made efforts to remove the evils. Their prominent reforms were संत रामानंद, संत कबीर, चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एटसेट्रा. मतलब जाति भेदभाव के विरुद्ध समय समय पर समाज के कई लोगों ने आवाज़ उठाई और सुधार के प्रयास भी किए. इनमें से प्रमुख थे वे सब ये लोग थे. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे. टुडे विद द स्प्रीड ऑफ एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर फैक्टर्स लाइक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड urbanization, caste system has become less rigid. The Constitution of India has declared untouchability and caste discrimination as illegal. It has been declared that the state shall not allow anybody to discriminate on grounds of caste or creed or religion. The caste system is the major hurdle in the path of national integration. It means वर्तमान में शिक्षा के प्रचार प्रसार, विज्ञान एवं औद्योगिक विकास तथा शहरीकरण से जाति व्यवस्था के बंधन में काफ़ी ग्रोथ हुई है. भारत के संविधान में छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है. राज्य द्वारा किसी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जा सकता तथा जातिवाद राष्ट्रीय एकता में एक प्रमुख बाधा उत्पन्न करती है.
नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे टेररिज्म। इट मीन्स आतंकवाद। द वर्ल्ड फेसेस ग्रेव थ्रेट फ्रॉम टेररिज्म। दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमैनिटी। आतंकवाद पूरे वर्ल्ड के सामने एक गंभीर चुनौती है। यह लोकतंत्र व मानवता के विरुद्ध एक अपराध है। इट इज अ बार्बरस फ्रॉम अ कार्नेज। मतलब यह एक क्रूरतापूर्ण नरसंहार का एक स्वरूप है। द टेररिस्ट वॉन्ट टू कन्वे देयर मैसेजेस थ्रू फियर एंड टेरर। मतलब ये जो आतंकवादी लोग होते हैं ये अपने डर और आतंक के द्वारा लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। द रिलीजियस फैनेटिक्स indulge in killing innocent people. They want separation by these activities. मतलब ये लोग अपने धर्म से प्रेरित होकर निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए मारने और स्वयं मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और इन घटनाओं मतलब इन एक्टिविटीज के द्वारा वे क्या चाहते हैं? अलग अलग होना। टेररिज्म इज अ प्लान्ड मूव टू स्प्रेड वायलेंस टू गेन डिजायर्ड पर्पस। मतलब आतंकवादियों का मेन पर्पस लोगों में हिंसा फैलाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। द टेररिस्ट बिलीव इन वायलेंस एंड कमिट डिवास्टेटिंग एक्टिविटीज एंड दिस डैमेजेस द कंट्री अ लॉट। मतलब आतंकवादी हिंसा में विश्वास रखते हैं और विध्वंस कार्यवाही करते हैं। इससे देश को काफ़ी नुकसान भी होता है। दे बिलीव टू गवर्नमेंट विल सम डे एक्सेप्ट देयर टर्म्स। और वे यह मानते हैं कि उनकी इन एक्टिविटीज से सरकार कभी ना कभी उनकी बातों को मान लेगी। दे जस्टिफाई यूज ऑफ वायलेंस अनडेमोक्रेटिक एंड इलीगल मीन्स इन द ग्रेव ऑफ रिलीजन ऑल्सो। एट प्रेजेंट टेररिज्म इज पोजिंग कंस्टेंट थ्रेट टू डिसइंटीग्रेट अवर नेशनल यूनिटी। मतलब ये लोग हिंसक अलोकतांत्रिक व अनैतिक साधनों का प्रयोग धर्म की आड़ में भी करना न्याय संगत मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं यह हमारे धर्म के लिए बिल्कुल सही है। वर्तमान में आतंकवाद हमारी राष्ट्रीय एकता को खंडित करने का निरंतर प्रयास करते रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हम देखेंगे सेपरेटिज्म। इट मीन्स पृथकवाद, मीन्स अलग अलग। The most disturbing state of regionalism gives birth to separatism to demand an independent state out of the country is called separatism। मतलब क्षेत्रवाद की अति आक्रामक अवस्था पृथकवाद को जन्म देती है। देश से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करना पृथकवाद है। People of various castes and languages live here. Sometimes feeling of being ignored inspires them to make demand for a separate state। मतलब कई जाति और भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। कभी कभी उनमें इग्नोर होने की भावना जन्म लेती है और यह भावना महसूस करने पर ये पृथक राज्य बनाने की मतलब अलग राज्य बनाने की मांग करने लगते हैं। The border states are often mostly influenced by such feelings and results in strong feelings of separation. The external forces instigate to destabilize the peace and security of the country. जनरली बॉर्डर वाले राज्यों में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है जिसके दुष्परिणाम से पृथकवाद की भावना उत्पन्न होने लगती है। इस भावना को देश की अस्थिरता में रुचि रखने वाली बाहरी ताकतों द्वारा भड़काया जाता है। मतलब बाहर के लोगों द्वारा उन्हें प्रोवोक किया जाता है। देश के अंदर रहने वाले कुछ लोग भी अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस प्रकार की भावना का प्रयोग करते हैं। Some people living in the country also indulge in separation to fulfill their vested interest। मतलब राज्य के अंदर के लोग ही अपने ही लोगों को अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए भड़काते हैं ताकि वह राज्य से अलग हो जाए और इस प्रकार वे अलग होने की मांग करते हैं। The enemies of a country and fundamentalists even choose to follow the path of violence and terrorism. The tendency of separation is a major challenge to the unity of country. This feeling of separation could be evaded by social justice, decentralized and balanced development। राष्ट्र विरोधी और कट्टरपंथी मतलब जो अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं ऐसे लोग तो हिंसक साधनों एवं आतंकवादी तरीकों तक का प्रयोग करने लगते हैं। पृथकवाद की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर चुनौती है।
सामाजिक न्याय, विकेंद्रीकृत एवं संतुलित विकास से पृथकवाद की भावना को समाप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, यह था आपका सिविक्स का लेसन 1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, तो आप यह वीडियो अच्छे से देखें और ये चैप्टर को अच्छे से समझ लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।